بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 19 اکتوبر 2021 بروز منگل 13 ربیع الاول بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے انفو ٹی وی چینل آئے ہیں۔ سعودی عرب بھر کی اتھینٹک خبریں سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات ہونے والی ہے ٹریفک قوانین کی، حروب والوں کی، خروج وطن کی، بات کریں گے عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں ہیں، فلائٹ، جوادات، اقامات، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ شاہ سلمان کو عمان کے سلطان کا باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے خط۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کی جانب سے ایک مکتوب موصول ہوا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق مکتوب دونوں ملکوں اور عوام کے درمیان مضبوط اور ٹھوس تعلقات، مختلف شعبوں اور ہر سطح پر انہیں بڑھانے اور سپورٹ کے طریقوں کے حوالے سے ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو یہ خط عمان کے ہم منصب بدر البوسعیدی نے ملاقات کے دوران پیش کیا۔ زائرین حرم میں 2000 کے قریب چھتریوں کی تقسیم۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرم کے زائرین میں 2000 کے قریب چھتریاں تقسیم کی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق چھتریوں کی تقسیم انتظامیہ کے تحت رضاکارانہ خدمات انجام دینے والی کمیٹی نے کی ہیں۔ کمیٹی کے سربراہ انجینئر امجد بن عائض الحازمی نے کہا کہ زائرین کو دھوپ سے بچانے کے لیے مطاف میں چھتریوں کی تقسیم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رضاکاروں کی ٹیم نے چھتریوں کی تقسیم کے وقت تمام SOPs پر عمل کیا ہے۔ واضح رہے کہ انتظامیہ اکثر و بیشتر زائرین حرم میں چھتریوں کی مفت تقسیم کرتی رہتی ہے۔ یہ کام زائرین حرم کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے سلسلے میں کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں کار حادثہ، اطالوی طائفے کے 3 ڈانسر ہلاک۔ سعودی عرب میں اتوار کو کار کے حادثے میں 3 جو اطالوی باشندے سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اطالوی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں حادثے میں ان کی تصدیق کر دی ہے۔ تینوں اٹالین جو ڈانسر سے ایک تھیٹر کے افتتاح کے لیے سعودی عرب آنے والے جو ایک پورا حصہ تھا اس کے اندر موجود تھے، جو ان کا سٹاف تھا۔ ہلاک ہونے والوں کی عمر 30 سال سے کم تھی۔ ان کی شناخت اینٹینیو جیمپیرو اور نکولس کے نام سے ہوئی ہے۔ چوتھے شخص کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ ابتدائی معلومات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتوار کو چھٹی تھی اور انہوں نے ڈیزرٹ میں سیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نامعلوم وجہ کی بنا پر ان کی گاڑی ایک کھائی میں جا گری اور الٹ گئی۔ حادثے میں مزید 3 اطالوی متاثر ہوئے۔ ایک کی حالت تشویشناک ہے، تاہم باقی 2 محفوظ ہیں۔ ٹرک ڈرائیورز کے لیے نئی ہدایات کیا ہیں؟ ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے بڑے شہروں میں ٹرکوں کے داخل ہونے کے اوقات کار متعین کرنے کے لیے آن لائن ٹائم ٹیبل سسٹم جاری کیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق جو ٹرانسپورٹ جو اتھارٹی تھی اس نے توجہ دلائی تھی کہ نئے ٹائم ٹیبل پر عمل درآمد کا آغاز جدہ سے ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ شہر کے باہر ٹرکوں کے رش کو روکنے اور ٹرانسپورٹ کا معیار بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے، اور ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ نئے نظام پر عمل درآمد کی بدولت سامان لانے لے جانے والے ٹرانسپورٹرز کو بھی سہولت ہوگی۔ آئندہ مقررہ اوقات میں ہی وہ شہروں میں داخل ہوں گے اور رش والے وقت میں شہر کا رخ نہیں کریں گے۔ نئے پروگرام سے سعودی عرب کے تمام علاقوں اور شہروں میں کارگو سروس میں تیزی آئے گی اور اس کی بدولت سامان طلب کرنے والوں کو بھی آسانی ہوگی اور انہیں پتہ ہوگا کہ انہیں مطلوبہ سامان کب ملے گا۔ واضح رہے ٹریفک قانون کے مطابق شہروں میں ہیوی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹرکوں اور بڑی گاڑیوں کے داخلے کے لیے اوقات مقرر ہیں جن پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ڈرائیور کا چلان کیا جاتا ہے، اور ابھی مشترکہ کمیٹی جو ہے اس نے چھاپہ مار مہم بھی شروع کر دی ہے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ بات کریں گے کیا ٹریفک چلان کی قسطیں کروائی جا سکتی ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق آن لائن ابشر جو ہے اس کے ذریعے جو ٹریفک جرمانہ ہے اس پر اپیل دائر کی جا سکتی ہے، لیکن تاہم جرمانے کی قسطیں کسی حالت میں نہیں ہوں گی۔ ہر ٹریفک خلاف ورزی کا جو جرمانہ ہے الگ الگ ادا کیا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق 5 صورتوں میں ٹریفک جرمانے ہر قیمت پر ادا کرنا ہوں گے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا، تجدید یا گمشدہ ڈرائیونگ لائسنس کے بدلے لائسنس نکلوانے سے پہلے جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔ رخصہ یعنی کہ استمارہ کے اجرا یا تجدید یا گمشدہ استمارے کی جگہ نیا رخصہ جو ہے وہ جاری کراتے وقت اس گاڑی کی نمبر پلیٹ نام سے ہٹوانے اور نمبر پلیٹ کی اصلاح سے پہلے تمام پیمنٹ کرنا ہوگی۔ گاڑی چلانے کا مختار نامہ بھی جاری کرنے والے اور جس کا نام جاری کرایا جا رہا ہے اس کے نام پر موجود جرمانے اس طرح گاڑی پولیس کی ضبطی سے نکلوانے سے پہلے جرمانے ادا کرنا ہوں گے، ورنہ کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔
हरूब की रिपोर्ट मनसूख कराने का तरीका कार क्या है? वजारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के हरूब की रिपोर्ट के 20 दिन के अंदर मनसूख कराई जा सकती है। वजारत से एक सारिफ ने सवाल किया कि इस बात सही है कि हरूब रिपोर्ट मनसूख कर दी गई है जिसके बाद हरूब वाले कारकुन अपना इकामा तजदीद और नकल कफाला करा सकते हैं। इस पर वजारत ने कहा, हरूब कैंसल के साथ मामला वैसा ही है जैसा पहले था, जबकि हरूब की रिपोर्ट दर्ज करने के 20 दिन के अंदर कफील को इख्तियार है कि वो इसे ऑनलाइन तरीके से कैंसिल करा सकता है। वजारत ने कहा कि हरूब की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसे जो 20 दिन के बाद उसे मनसूख या कैंसिल नहीं कराया जा सकता। मेहनत का नया कानून जो है वो गैर मुल्कियों के लिए खरूज होता और जो खरूज नहाई है उसका आगाज़ हो चुका है। जब वजारत की जानब से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को अपने लिए अबशर से खरूज जोदा और जो खरूज नहाई है हासिल करने का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले कारकुन अपनी छुट्टी और अपना खरूज नहाई नहीं लगा सकता था, इस बात की इजाज़त नहीं होती थी। नए मेहनत के कानून के निफाज के बाद से ये सहूलत फराहम की गई है। सऊदी अरब में जारी होने वाले मेहनत के नए कवानीन के तहत गैर मुल्कियों को काफ़ी ज़्यादा सहूलतें दी गई हैं, जिसमें से एक सहूलत अपने लिए छुट्टी या खरूज नहाई हासिल करना है। और आपको बताते चले कि गैर मुल्की कारकुनों के लिए फ़ाइनल या री एंट्री वीज़े जारी कराने के लिए जो सबसे पहले वो 30 दिन का जो है वो खरूजोदा यानी कि छुट्टी हासिल कर सकते हैं। अबशर पोर्टल के ज़रिए खरूजोदा या फ़ाइनल एग्ज़िट हासिल करने के तरीक़ाकार के बारे में बताया गया है कि कारकुन को अपना फ़ाइनल या एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा जारी कराने की एप्लीकेशन सिस्टम में अपलोड करने के बाद 10 दिन इंतज़ार करना होता है। मुकर्रर 10 दिन की मुद्दत ख़त्म होने के बाद यानी 11वें दिन कारकुन अपने लिए वीज़ा जारी करने की जो है उसको इजाज़त होती है, जिसका दौरानिया 5 दिन होता है। यानी 5 दिनों के अंदर अंदर आप अपने लिए एग्जिट एंट्री इशू कर सकते हैं, वरना सिस्टम उसको ऑटोमेटिक तरीके से लॉक कर देगा। 10 दिनों के दौरान कारकुन के स्पॉन्सर की जानब से वीज़े के इजरा को रोकने की दरख्वास्त मौसूल होने की सूरत में केस जो है वो वजारत अफरादी क़ुव्वत के पास पहुँच जाता है, जहाँ जायज़ा लेने के बाद इसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा। वजारत अफरादी क़ुव्वत केस पर कार्रवाई 10 दिन के अंदर अंदर करने की मजाज होगी, जिसका हिसाब दरख्वास्त जमा कराने की तारीख से होगा, कफील की जानब से एतराज़ दायर करने की तारीख से नहीं। अबशर सिस्टम के ज़रिए कारकुन को अपने लिए खरूज नहाई या खरूजोदा हासिल करने के लिए उसके 5 शराइत रखी गई हैं। सबसे पहले कि जवाज़ात के सिस्टम में उसका स्टेटस जो है वो ज़िंदा का यानी कि मुतवफ़ी नहीं होना चाहिए, फ़ौत हुआ नहीं और हरूब ना हो, और इसके अलावा वो रिक्रूटमेंट की खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब ना हो, और इसके अलावा कोई ट्रैफिक चालान नहीं होना चाहिए, इकामा और पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। बढ़ेंगे मज़ीद ख़बरों की तरफ बात करेंगे। खरूज जोदा में तोसी कैसे होगी? खरूज जोदा एक्सपायर हो गया, क्या दोबारा से खुसूसी रियायत मिलेगी? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़े हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। अजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगे ज़रूरी है। ऐवान शाही की जानब से उन गैर मुल्कियों के जोहा से आने पर आर्जी पाबंदी आयत है। खसूसी राय देते हुए इकामों और खरूजोदा की मुद्दत में 30 नवंबर 2021 तक तोसी का ऐलान किया गया था। ऐसे लोग जो मुतासरा ममालिक के शहरी हैं, उनके इकामा और खरूजोदा की मुद्दत में शाही मुआफ़ी के तहत खुदकार तोसी कर दी जाएगी, जिसके लिए उन्हें जवाज़ात से रजू करने की ज़रूरत नहीं है। एक शख्स ने जवाज़ात से पूछा है कि मेरा सिस्टम में 31 जुलाई को एक्सपायर दिखा रहा है, क्या मुझे भी सरकारी रायत मिलेगी? जवाज़ात की जानब से बताया गया कि शाही ऐलान के बाद मुतासरा ममालिक के उन शहरियों के इकामा और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी मरहलावार जारी है। इस बारे में जवाज़ात से रजू करने की ज़रूरत नहीं, खरूजोदा ऑटोमेटिक तरीके से मुकर्रर मुद्दत तक के लिए तजदीद कर दिया जाएगा। एक और शख्स ने जो है वो दरियाफ्त किया कि शाही रायत के तहत इकामा और खरूजोदा की मुद्दत में 30 नवंबर तक जो है वो तोसी दी गई है। अगर इस दौरान फ़्लाइट्स ओपन नहीं होती तो क्या ये रायत मज़ीद दी जाएगी? तो इस बारे में उनका कहना था अगर सरकारी सतह पर किसी किस्म की खसूसी रायत के अहकामात जारी होंगे तो उनका ऐलान सरकारी सतह पर किया जाएगा। तो एक और शहरी ने खरूजोदा के हवाले से ही पूछा है कि अपने कारकुन के खरूजोदा वीज़ा लगवाया है, मगर अब वो खरूज नहाई जाना चाहता है, क्या मैं खरूजोदा को खरूज नहाई में तब्दील कर सकता हूँ? तो जवाज़ात की जानब से बताया गया कि खरूजोदा लगवाने के बाद अगर सफ़र नहीं किया जाए तो उसे कैंसिल कराना लाजमी है। कैंसिलेशन की फ़ीस नहीं होती, ताहम खरूजोदा के लिए जो फ़ीस जमा कराई गई है वो वापस नहीं मिलेगी। खरूजोदा अबशर पोर्टल से कैंसिल कराया जा सकता है। वाज़ेह है खरूजोदा जारी कराने के बाद या तो उसे इस्तेमाल किया जाता है या वक्त के अंदर अंदर उसे कैंसिल कराया जाता है, वजूर दीगर जुर्माना आयद होता है। खरूजोदा वीज़े को खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े में तब्दील नहीं कराया जा सकता। इसके लिए पहले खरूजोदा को कैंसिल कराया जाए, उसके बाद फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा दिया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान 23 अक्टूबर को सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर जाएंगे।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान 23 अक्टूबर को सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे में कॉन्फ्रेंस में शिरकत और सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 23 अक्टूबर को 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। वो ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और दारुल हुकूमत रियाद में 25 अक्टूबर को जो मुनक़द होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा दौरे सऊदी अरब के किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस साल मई में भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 3 दिन के लिए सऊदी अरब का दौरा किया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल-समेन से भी मुलाकात की और उनका कहना था कि जो तवक्को ज़ाहिर की है कि हाल ही में कायम होने वाली सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाएगी और इसके अलावा जो है वो तेल की अदायगी पर मामला तय किए जाएंगे और हो सकता है कि इसके बारे में फ़्लाइट्स की जो आपकी खुशखबरी जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कि दौरे के दौरान ही पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स और जो है उसकी बहाली का ऐलान हो जाए। तो देखते हैं, उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह इमरान खान साहब का दौरा अच्छी न्यूज़ ही लेकर हमारे लिए आएगा। बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरफ, आपको बताएंगे अल-शर्किया में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ 72 तजारती इदारे सील कर दिए गए। सऊदी अरब में अल-शर्किया म्यूनसिपैलिटी ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 72 तजारती इदारों को सील किया है। सरकारी खबरसा एजेंसी SPM के मुताबिक शर्किया म्यूनसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स और मुआवनीन ने बाज़ारों, तजारती मराकज़ और दुकानों के 1222 छापे मारे, जिसके दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ सामने आईं। सऊदी शहरियों को लेबनान का सफ़र न करने की हदायत। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को लेबनान के सफ़र से गुरेज की हदायत की है। अल अरेबिया के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने लेबनान में शहरियों पर जोर दिया कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और रश वाले मकामात और मुज़ाहरों से दूर रहें। बात करेंगे कुछ कोरोना के केसेस के बारे में। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 38 नए केसेस। सऊदी अरब में पीर 18 अक्टूबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी आई है। पीर को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 52 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 2 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8765 हो गई है। सऊदी अरब में सोने के रेट फिर बढ़ने लगे। आलमी गोल्ड मार्केट में पीर को कारोबार के आगाज़ के पहले दिन सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसका असर सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट पर भी पड़ा है। आजल वेबसाइट के मुताबिक पीर को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 213.16 रियाल रही, जबकि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सोना 21 कैरेट है, जिसकी 1 ग्राम कीमत 186.51 रियाल रही। 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 159.87 रियाल में, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोना 124.34 रियाल में दस्तयाब रहा। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।